سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دبئی میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے میل ملاقاتوں کو لے کر سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی زبان پر بھی شکوے آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سربراہ پی ڈی ایم کی پشاور میں صحافیوں سے گفتگو۔ دبئی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی قیادت پر شکوے، نون لیگ سے ناراضی کا اظہار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نون لیگ نے پی ڈی ایم اتحاد میں شامل جماعتوں کو دبئی میں ملاقاتوں پر اعتماد میں نہیں لیا۔ دبئی مذاکرات اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی سے ہوئے، اس لیے سب کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، اس لیے اس سے دبئی مذاکرات کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے۔ سربراہ جے یو آئی فے کا کہنا تھا کہ ہم 2018 انتخابات کے بعد اسمبلیوں کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھانا چاہتے تھے، تاہم اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا۔ بے شمار مشکلات پیدا کی گئیں مگر ہم نے تحمل سے کام لیا۔ عام انتخابات سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے، 1 ماہ میں مرکز، سندھ اور بلوچستان میں نگران حکومتیں قائم ہو جائیں گی، معاشی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر وزیراعظم کی آرمی چیف پر قاتلانہ حملے سے متعلق سوشل میڈیا مہم چلانے کی مذمت۔ شہباز شریف کہتے ہیں 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی، پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شرپسند عناصر باز نہ آئے، آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلانے لگے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس، ملک دشمن رویے کی شدید مذمت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سازشی ذہن ملکی سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف اور فوج کے خلاف مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم نے شرپسند عناصر کو ایک بار پھر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو کچل دیں گے، ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ گزشتہ 4 سالوں میں نوجوانوں میں نفرت کے بیچ بونے کے ساتھ اداروں کو برباد کیا گیا۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی ریڈیو پاکستان کے مختلف منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ گزشتہ حکومت کے وزیر نے پی ٹی وی کو تباہ کر کے رکھ دیا تاکہ اسے تاریخی ادارے کو پرائیویٹ کر دیا جائے۔ لوگ پی ٹی وی کی نیلامی کی بات کرتے تھے لیکن ہم نے بہترین پروجیکشن کی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو ایسپورٹ کر دیا، پی ٹی وی سپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے۔ جس طرح 4 سال نفرت کے بیچ بوئے گئے، عدم برداشت کے بیچ بوئے گئے، گالی گلوچ کے بیچ بوئے گئے، اور جس طرح ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر چیزوں کو لے جا کر اس ملک کے اندر نفرت پھیلائی گئی، یہ سب سے اہم ترین وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو ایک ایسا آلٹرنیٹو دیا جائے، ایک ایسا آلٹرنیٹو دیا جائے جس کے ذریعے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ منفی اور نفرت کی سیاست بہت ہو چکی، اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ سندھ کے وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ 15 جولائی سے دہبیجی اکنامک زون کا آغاز ہو رہا ہے، سرمایہ کاری کے فروغ سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ سندھ حکومت میگا منصوبوں کے حوالے سے ملک بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ پیپلز پارٹی نے 22 کروڑ عوام کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے۔ شروع کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دھابیجی اکنامک جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے، یہ پروجیکٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اس کے آنے سے سندھ بھر میں، پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنامک زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کا روزگار بڑھے گا۔ ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے۔ ادھر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہمیں قائد اعظم کے پاکستان سے بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا ہے، اردو کے خلاف سازش کر کے ملک کو 2 لخ کیا گیا۔ کنوینر ایم کیو خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کوئی میر بننے سے شہر کا مالک نہیں بن سکتا، جو صدیوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔
MQM के ज़ेरे एहतमाम मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और शोहदाए उर्दू के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं था उसको कराची दे दिया गया। 5% टर्न आउट पर कोई शहर का मालिक नहीं बन सकता। 5% के मैंडेट से तो कोई शहर का मालिक और खुद मुख्तार, क्योंकि 15 साल से इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं, जो 50 साल से जिसके पास कराची का कोई मैंडेट ही नहीं रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि उर्दू दीगर कौमियतों में राबते की जबान है। उर्दू जबान ना होती तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी होते। उर्दू को सरकारी जबान बनाने के लिए अदालती फैसले दिए गए। पाकिस्तानियों बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे खित्ते के दरमियान कोई जबान मकालमे की जबान है, बैठने की जबान है, तो वो उर्दू जबान है। कन्वीनर MQM ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में जब आमरीत का खतरा था तो मादर मिल्लत ने अपनी क़यादत में पूरी कौम को जमा किया था। फातिमा जिन्नाह को हरवा कर पाकिस्तान को हरवाया गया। और अब बात करते हैं बारिश और उससे होने वाली तबाहकारियों की। तो भारत में मूसलाधार बारिशों से पानी का दबाव बढ़ा तो मोदी सरकार ने डैमों के स्पिलवेज खोल दिए हैं, जिसके बायस दरिया रावी और सतलुज में पानी की सतह बढ़ने लगी है। दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDM के मुताबिक इब्तदाई तौर पर भारत की जानिब से 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने 1,85,000 क्यूसिक पानी उज बेराज से दरियाए रावी में छोड़ा है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तकरीबन 65,000 क्यूसिक पानी अगले 20 से 24 घंटों में पहुंचने की तवक्को है, लेकिन दरियाए रावी की सैलाबी हुदूद के मुताबिक मैदानी इलाकों में कम सैलाब मुतवक्के है। उधर दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह मजीद बढ़ने लगी है, जिससे मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने का खदशा है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट तक बुलंद हो गई है। तलवार पोस्ट के साथ भकीवन के मकाम पर दरिया का कटाव मजीद बढ़ रहा है। कहरोड पक्का में भी असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू टीमें दरियाए सतलुज कंड अहमद हसन के मकाम पर जायजा लेने पहुंची। उनके मुताबिक पानी का बहाव मकामी आबादी की तरफ है। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। बेराज ज़राए के मुताबिक यहाँ पानी का बहाव 1,03,910 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि पानी का अखराज 88,110 क्यूसिक है। पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। चंद रोज में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। जलालपुर भटिया में जिला इंतजामिया ने दरिया के करीबी इलाकों को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दरिया के करीब हिफाजती बंद की भी मरम्मत न की जा सकी। और अब बात करते हैं मुमकिन सैलाब के खदशे की। तो निगरान वज़ीर आला की जानिब से सूरत हाल को मॉनिटर करने का हुक्म दिया गया है। सैयद मोहसिन नकवी ने दरिया रावी का दौरा किया और पानी के बहाव का जायजा लिया। दरिया के बेड में मौजूद आबादियों के फौरी इनखला की हिदायत भी जारी की। तफसीलात ज़ोहेब काज़मी की इस रिपोर्ट में। मुमकिना सैलाब निगरान हुकूमत भी अलर्ट हो गई। वजीर आला मोहसिन नकवी दरिया रावी पर पहुंचे, सूरत हाल का खुद जायजा लिया। निगरान वजीर आला ने मुतलका अदारों को पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म दे दिया। रावी के बेड में मौजूद आबादियों के फौरी इनखला की हिदायत जारी करते हुए तमाम अदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी की। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि रावी के करीब आबादियों में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए जाए। पेशगी इंतजामात के सिलसिले में कोताही या गफलत बरतने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारा एक तो इंसानी जान बचाना काम है, अगर अल्लाह ना करे सैलाब ज़्यादा आता है, और दूसरा जानवरों को बचाना भी जरूरी, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है जानवरों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप इंसानों की जान तो बचा लेते हैं। निगरान वज़ीर आला ने मेडिकल कैंप और रेस्क्यू 1122 की कमांड पोस्ट का भी मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकें भी देखी। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ ज़ोहेब हसन काज़मी, PNN लाहौर। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जेहलम में गैस सिलेंडर फटने से इमारत गिरने के वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म की जहाँ बहक होने वाले अफराद के लिए मग़फ़िरत और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों के लिए भी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने हुकाम को ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत जारी की हैं। नाज़रीन, यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला खुशकिस्मत गुजरात का रिहायशी उस्मान सिद्दीक वापस घर पहुंच गया है।
28 साला उस्मान महकमे पुलिस में कांस्टेबल था। वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ इटली जाना चाहता था। उसका कहना है कि कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी भी शामिल थे। चारों समंदर में कश्ती चलती रही। इस दौरान कोई किनारा देखा, न कोई जजीरा। उस्मान ने बताया कि हादसे से कबल एक हेलीकॉप्टर आया और जिसके आने के बाद हम पुरुम्मीद हो गए कि रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रस्सी डालकर हमारी कश्ती को खींचा गया तो बैलेंस बिगड़ने से कश्ती डूब गई। उसके बाद कोई उनकी मदद को न आया। एक बार फिर रुख करते हैं क्रिकेट का, तो फास्ट बॉलर एहसान आदिल और ऑलराउंडर हमाद आजम रिटायर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एहसान आदिल ने फरवरी 2013 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में अपने टेस्ट करियर का आगाज़ किया था। इसके बाद वो मज़ीद 2 टेस्ट मैचेस खेले। उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 5 विकेटें हासिल की, जबकि 6 वनडे इंटरनेशनल में 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। ऑलराउंडर हमाद आजम ने 2011 से 2015 तक के अरसे में 11 वनडे इंटरनेशनल खेले, जिनमें 80 रन बनाने के अलावा 2 विकेटें हासिल की। वो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 34 रन बनाने में कामयाब हो सके थे। पाकिस्तान में अपना घर बनाना और प्लॉट खरीदना हुआ आसान। ज़मीन.com लाया है एक नया प्रोजेक्ट। शहरी सस्ता घर और प्लॉट कैसे खरीद सकते हैं, ये बता रहे हैं शिराज निसार अपनी इस रिपोर्ट में। अपने घर के ख्वाब को अमली ताबीर देने का मिशन, कम कीमत और इंतहाई आसान एक साथ पर प्लॉट लेना हुआ अब बहुत आसान। ज़मीन.com की जानिब से नया मंसूबा मुतारिफ करवा दिया गया। लाहौर के एम्पोरियम मॉल ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक एक तारुफी तकरीब सजाई गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग चौधरी लईक इफ्तिखार का कहना था कि ज़मीन.com एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लाया है। डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग रबिया इफ्शा ने बताया कि ज़मीन.com के पेश करता तमाम प्रोजेक्ट्स आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं है। ज़मीन.com में अभी जो बहुत अमेजिंग चीज़ आज इस इवेंट में की है, हम उनके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे प्लॉट्स जो कि ऑन ग्राउंड है, जो सिर्फ 30% पे करके अपना ड्रीम होम बना सकते हैं। ज़मीन.com के ओहदेदारान ने मजीद बताया कि आधी कीमत मुकम्मल होने पर पोजेशन दे दिया जाता है, बाकी एक साथ बाद में अदा हो सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ शिराज निसार, PNN लाहौर। और इसके साथ ही PNN के न्यूज़ स्टूडियो से खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।